I extend my warm greetings and welcome you all to Jammu Kashmir. First of all, I would like to congratulate each one of you, the nation and the entire space scientist community, for the successful landing of Chandrayaan-3 on the lunar surface. We have become the fourth nation to achieve this feat and the first country in the world to land on the South Pole region of the moon. The historic achievement just hours before the conference is obviously very auspicious and encouraging for all of us, and I would like to say it is a great start to this conference. I am overjoyed and overwhelmed to see India emerging as a global superpower in space. While the rover will continue to explore the moon for the next 14 days, I am happy to see experts from India and foreign delegates. We'll have a great interaction, deliberations on agricultural education, skill development, and leveraging agriculture 4.0 technologies that will benefit not only India, but indeed the entire world. Friends, Jammu and Kashmir is not just geography on the world map, but the center of wisdom, the land famously known as crown jewel of India and Sarda Peeth. The synergy center of the Himalaya has produced great mystics, and this is the place where many seekers found the answer on their mission searching for the truth. Jammu Kashmir is called paradise on the earth, though it is not confined to the beautiful landscape and mesmerizing valley, but expanded to the vast reservoir of knowledge, wisdom, inner richness, which I think is the greatest treasure for human beings. It is said in Urdu, फूल क्या सगूफे क्या, चाँद क्या सितारे क्या, जहन जाग उठता है, रूह जाग उठती है, नक्श आदमियत के जगमगाने लगते हैं, देवता फिजाओं में मुस्कुराने लगते हैं. The birds and the flowers, the moon and the stars, the mind is stirred, the conscience awakened, the sign of nobleness begin to glow, and gods fill the atmosphere with smiles. This is Jammu Kashmir, where you will find all spiritual streams, diverse cultural influence, and gardens of peace, brotherhood, and humanism. Few months ago in May, we successfully hosted G20 summit here in Srinagar that was attended by more than 57 foreign delegates from 27 countries. It was a reflection of India's strength and its ancient values of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. I had a great interaction with the young delegates visiting from different democratic countries earlier in the day. The world is aware of the fact that for almost 3 decades this land of peaceful coexistence of almost all religious sects had to suffer state-sponsored terrorism by our neighboring country. However, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, through development schemes that empowers masses and union territories' effective administration, isolated the terror ecosystem which used to thrive with the support from across the border. In the last 4 years, we have traveled a long distance to reach where we have reached today. Our economy is growing, tourist influx has increased manifolds, industrial investments including foreign direct investments are pouring in, quiet transformation is taking place at the level of rural enterprises, cities are transforming with smarter solutions for ease of living, and districts are becoming a production base, export hub for handloom, handicrafts and agricultural products. I consider investment in information technology as an investment in the future and in our efforts to create a truly digital society and improvement in the quality of life of the people. As our Chief Secretary said, more than 900 public services are being provided online. From new highways, rural roads to Industry 4.0 technology, we are witnessing the beginning of a qualitative change and tremendous growth in every sector.
we have created a new department called Mission Youth to provide new opportunities to tap this vast pool of talent. Last year, 786 youth had started their entrepreneurial journey per day, which signals that our youth, full of confidence, are increasingly impatient for progress and Jammu Kashmir and utilizing every possible opportunity to fulfill their aspirations and dreams. All these strengths have resulted in a new vigor in agriculture and allied sector, in which more than 70% of our population is directly or indirectly engaged for their livelihood and socio-economic growth. I would also like to focus today on where this sector is and where we would like to take it in the foreseeable future. But before that, I would like to congratulate members of agriculture universities, agri-entrepreneurs, experts, and faculty of SKUAST-Kashmir, and hard-working farmers of our country and Jammu Kashmir for robust growth in this sector with an average annual increase rate of 4.6% over the last 6 years. Your achievements fill my heart with pride. SKUAST-Kashmir's success in promoting agricultural education, its contribution in policy making and promotion of entrepreneurship is living proof that given a proper enabling environment, our experts and scientists working in this important sector are second to none in the country or in the world. Professor Najir Ganai and this SKUAST which he heads has done valuable work in redefining agricultural education, research, and in developing global partnership with top universities of the world. Under his guidance, this university is pioneering several major programs to transform agriculture and allied sector and open up more opportunities to the youth. In the field of agricultural education and research, SKUAST-Kashmir is perhaps among very few universities which are trying to fundamentally change this sector and increase global cooperation. Last year, it had organized an International Education Expo in Delhi and also helping us in policy making too. I truly appreciate the futuristic and courageous initiative to chart a path of dynamic economic growth, excellent collaboration to redefine the agricultural education and skill development. साथियों, पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर ने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ एक नई यात्रा शुरू की है। प्रोफेसर नजीर अहमद गनई देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों की टीम के हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने के लिए आगे 5 सालों का एक फ्यूचरिस्टिक रोड मैप तैयार किया है। उस रोड मैप को लेकर हम किसानों के पास गए हैं, उनकी ज़रूरतों को समझा है और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो गैप हैं उसे भरने के लिए आवश्यक जानकारियां भी जुटाई गई, चुनौतियों के लिए नए समाधान ढूंढे गए और उन्हें अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया। ये शायद मैं समझता हूँ कि देश की ऐसी पहली कृषि नीति है जिसमें वैज्ञानिकों का साइंटिफिक अनुभव, पॉलिसी मेकर्स के गवर्नेंस का अनुभव और किसानों के खेती का अनुभव तीनों शामिल किया गया है। उन सभी अनुभवों के आधार पर 29 प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए हैं। आज जब मैं इस यूनिवर्सिटी कैंपस में आपसे बात कर रहा हूँ, तब जम्मू कश्मीर के अनेक गांवों में किसान संपर्क अभियान हमारा चल रहा है। कृषि क्षेत्र के अधिकारी तथा हमारे एक्सपर्ट खेतों घरों तक पहुंचकर उन 29 प्रोजेक्ट्स की किसानों को जानकारी दे रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। साथियों, कोविड पैंडेमिक के पश्चात जो दुनिया विकसित हुई है, उसने एग्रीकल्चर तथा अलाइड सेक्टर को देखने का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल दिया है। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन का सामना कर रही थी, तो यही एकमात्र सेक्टर था जो पॉजिटिव ग्रोथ के साथ पूरी मानवता को आश्वस्त कर रहा था। और हमने यह भी देखा कि जिस प्रकार देश के किसान खेत में पसीना बहाकर अपनी आजीविका नहीं बल्कि
दुनिया के पेट भरने का इंतज़ाम कर रहे थे और देश को संपन्नता की तरफ ले जा रहे थे, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में हमने इसी सोच के साथ काम किया है और तमाम चुनौतियों को पार करते हुए हम देश के उन टॉप 5 राज्यों की कैटेगरी में आज शामिल हो गए हैं जिसके किसान की आमदनी सबसे ज़्यादा है। और इसलिए काफ़ी चिंतन विचार विमर्श के पश्चात हम सब ने सामूहिक निर्णय लिया था कि अगर हम सफलतापूर्वक इन 29 प्रोजेक्ट्स को खेतों में ला सकते हैं तो जम्मू कश्मीर न सिर्फ देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल होगा बल्कि हम देश के अन्य हिस्सों को भी इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मैं जानता हूं आजीविका पर आधारित एग्रीकल्चर को कमर्शियल एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्म करना यह निश्चित रूप से एक चुनौती भरा काम है। प्रोजेक्ट के अनेक कंपोनेंट हैं जिन्हें मिलकर काम करना होगा, इसलिए हर एक प्रोजेक्ट से संबंधित पूरी व्यवस्था को, मशीनरी को, इकोसिस्टम को बहुत ही सशक्त बनाया गया है। सभी कंपोनेंट को आपस में जोड़ा गया है ताकि जैसी सफलता चांद के लक्ष्य को पाने में हमारे वैज्ञानिकों ने की है, उसी तरह मिलकर सभी कंपोनेंट हमारे किसान भाइयों के लिए जम्मू कश्मीर के 13 लाख किसान परिवारों के साथ साथ 2,67,000 हमारे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए तथा कृषि पर आधारित इकॉनमी के लिए इन नए लक्ष्यों को हम हासिल कर सकें। इस प्रोग्राम द्वारा हमारा लक्ष्य 19,000 से ज़्यादा नए बिजनेस इंटरप्राइजेज शुरू करना है, 3 लाख से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार देना है। इस दिशा में एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किलिंग के लिए हमने एक नया अप्रोच अपनाया है जिसमें SKUAST कश्मीर और SKUAST जम्मू लीडरशिप की भूमिका निभा रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशन के आधार पर एग्रीकल्चर एजुकेशन को रीडिफाइन करने की कोशिश भी हम कर रहे हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर के खास तौर से, वही हमारे असली हथियार होंगे इस पूरी व्यवस्था को ज़मीन पर उतारने में। आजकल मेरे पास बहुत सारे लेटर्स आते हैं, पत्र आते हैं, ऐसे नौजवानों का जिक्र होता है जो ह्यूमैनिटीज साइंस में पढ़ाई पूरी करने के बाद थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करके इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू कर रहे हैं। कई ऐसे युवा भी हैं जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के 1-2 हफ्ते के स्किल डेवलपमेंट कोर्स के पश्चात इस सेक्टर में कदम रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे नौजवान भी हैं जो सीमित संसाधनों में एप्पल ग्रेडर जैसे नए इनोवेशन भी कर रहे हैं। और ये कोई 1-2 घटना नहीं है, हर महीने मुझे 15-20 ऐसे लोगों को जानने का अवसर मिलता है। ऐसी स्थिति में यह पहले से अधिक आवश्यक हो गया है कि हम अपने एग्रीकल्चरल एजुकेशन सिस्टम का दायरा किस तरह से बदलें, किस तरह से इसे और विस्तार दें। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस तक सीमित न रहे बल्कि ट्रेनिंग के मॉड्यूल उन इलाकों तक हम पहुंचा सकें जहां नए एंटरप्रेन्योर सिर्फ संकल्प और आर्थिक सहायता के बलबूते आगे बढ़ रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट तथा प्रोफेसर गणेश जैसे कृषि वैज्ञानिक अपना हाथ बढ़ाएंगे तो उन्हें वह साहस मिलेगा, उन्हें वो मार्गदर्शन मिलेगा जो सही मायने में उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति और नए माइलस्टोन तैयार करने में मदद करेगा। हम जानते हैं हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमें उन तक पहुंचने का मैकेनिज्म तैयार करना होगा और इस दिशा में किसान संपर्क अभियान जो डेटाबेस तैयार कर रहा है, उसके जरिए जो ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है वह भविष्य में भी सुविधाजनक रहे, ऐसी व्यवस्था हमें सुनिश्चित करनी होगी। SKUAST ने फील्ड ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ग्लोबल कोऑपरेशन पर काफ़ी बल दिया है और इसलिए इस साल रैंकिंग में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में 4थे स्थान पर SKUAST कश्मीर है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आज हमें अवसर दिया कि सीमित सब्जेक्ट से निकलकर एनिमल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस के इंटीग्रेटेड स्टडी के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए। एजुकेशन में भी आज वैल्यू एडिशन की गुंजाइश बनी है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि क्वालिटी मैनेजमेंट कैंपस से बाहर निकलकर खेत, एनिमल फार्म, डेयरी फार्म, फूड प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुँचे ताकि ऐसे लोग जो बिना इस सब्जेक्ट की पढ़ाई के अपना कारोबार चला रहे हैं उनकी हम हैंड होल्डिंग कर सकें। इस महीने मुझे रामबन की हिना लतीफ़
ने एक पत्र लिखा, उसके बारे में मुझे उस जानने का मौका मिला। इंग्लिश लिटरेचर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और डिपार्टमेंट की सीमित अवधि की ट्रेनिंग के पश्चात रामबन में फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की है। स्वतः अपने नहीं 20 और बहनों को रोजगार दे रही है। उन्हीं की तरह पुलवामा की आसिया जान है, जिन्होंने बहुत कम अवधि की ट्रेनिंग के पश्चात अपना बी कीपिंग का काम शुरू किया है। बारामूला के अब्दुल गनी हैं, जिन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के मिलेट का कल्टीवेशन बड़े पैमाने पर शुरू किया और आस पड़ोस के किसानों को प्रेरित भी कर रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने। ऐसी स्थिति में क्या हम सोच सकते हैं हम हिना, आसिया और अब्दुल गनी को कैसे मदद कर सकते हैं? हम एजुकेशन को कैसे रीडिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसे और अधिक प्रैक्टिकल बना सकते हैं, ताकि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को किस प्रकार इस नई व्यवस्था से हम जोड़ पाएँ, मार्केट से कनेक्ट कैसे कर सकें, ये भी सोचने की आवश्यकता है, ताकि स्किल गैप को भरा जा सके, उनकी सामर्थ्य, उनकी संभावना को अवसर प्रदान किया जा सके। दूसरा बड़ा लक्ष्य रूरल इनोवेशन को मेन स्ट्रीम में लाना है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि बारामूला के कुछ बच्चों ने एप्पल ग्रेडर तैयार किया है। वो कोई बड़ी टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ यह रूरल इनोवेशन सस्टेनेबल कैसे हो सकता है, इस पर कैसे हम काम कर सकते हैं, यह आज हमारे विचार का विषय होना चाहिए। मुझे लगता है कि एग्री 4.0 टेक्नोलॉजी को लेवरेज करने के साथ हमें रूरल इनोवेशन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हैं ताकि ऐसे इनोवेशन की पहचान कर उनकी इन्वेंट्री तैयार करके उन्हें और रिफाइन करने में हम मदद कर सकते हैं? मुझे लगता है इस विषय पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। मेरा एक दूसरा आग्रह भी है कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर को बायो कंजर्वेशन और कंज्यूमर स्टडी के साथ जोड़ सकते हैं। क्या अलग अलग सब्जेक्ट्स के इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ नीदरलैंड की वाहिंगन यूनिवर्सिटी की तरह कोई मॉड्यूल स्कास्ट कश्मीर भी बना सकता है, जो फ्यूचर रिसर्च में सस्टेनेबल लिविंग और सस्टेनेबल फार्मिंग को विकसित कर सके, प्रमोट कर सके। मेरे मन में ऐसे तमाम विचार हैं और मैं समझता हूँ इस पर आप सब लोगों ने बहुत ही चिंतन किया होगा। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हर एक एजुकेशन मॉड्यूल हमारा एक रिसर्च किसान और समाज के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बन सके। हमारा कोलैबोरेशन स्ट्रांग हो, स्टार्टअप्स के प्रमोशन तथा हैंड होल्डिंग की संभावनाएं जिस तरह की बनी हैं और उसमें स्कास्ट कश्मीर ने जो काम किया है, निश्चित रूप से वो सराहनीय है। एग्रीकल्चर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भविष्य के एंटरप्रेन्योर्स की ब्रीडिंग ग्राउंड बन सके। अब हमें उस दिशा में जाने की ज़रूरत है। एक बच्ची ने सवाल मुझसे पूछा था, थोड़ा मुझे लगता है संकोच कर गई, सीधे सीधे नहीं पूछ सकी। मुझे जहाँ तक समझ में आता है वो जानना ये चाहती थी कि फॉरेन स्टूडेंट्स और हमारी यूनिवर्सिटी में कैसे बढ़ें। एक प्रयास स्कास्ट कश्मीर ने किया है और भी जम्मू कश्मीर की कई यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन कर रही हैं दुनिया के दूसरे देशों के साथ, अनेक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के साथ। अभी हाल ही में हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने ही डिज़ाइन योर डिग्री नाम का एक नया इनोवेशन शुरू किया है, एक नया प्रयोग शुरू किया है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में देश इसको फॉलो करेगा। ये सच है कि अभी बड़ी संख्या नहीं है हमारे जम्मू कश्मीर में फॉरेन स्टूडेंट्स की, लेकिन इसका हर प्रयास किया जाएगा कि हमारे बच्चे भी दुनिया के दूसरे देशों के यूनिवर्सिटीज़ में जा सकें और बाहर के देशों के बच्चे भी हमारे जम्मू कश्मीर की डिफरेंट यूनिवर्सिटी में आवें। ये संख्या बढ़े, इसकी हर कोशिश की जाए। फ्रेंड्स, it is a matter of immense satisfaction for me that new innovation and research in agricultural sciences and technology has been continuously evolving. Agri 4.0 technology, its application and research is breaching new frontiers in agriculture and allied sector. In Jammu and Kashmir, horticulture and food processing is offering multifold opportunities, and holistic development program will open wide avenue of growth for entrepreneurs. With this cost leading the path in education too, we want to be globally competitive and widen our reach through collaboration with the best in the world. And I have high hopes to see it happening
sooner than later. An Urdu couplet says, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ मैं हूँ फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। Nobody can know my destination, where I am. Not even the angels can go. Only a few hearts are specially meant for love. It is a song which cannot be sung on every instrument. With these words, I welcome you all once again to this beautiful union territory, and I hope you will have enlightened discussions on various topics of redefining agriculture education to leadership, entrepreneurship, employment, and discovery. Thank you very much. Jai Hind.